Good evening, hello and welcome. You're watching Brass Tacks. I'm Anusha Soni. The move of the Yogi government in Uttar Pradesh banning the extra legal certification by some Muslim organization for certain food products has evoked a lot of controversy. The halal label on biscuits, medicines and other FMCG products is done by some Muslim bodies that have no real statutory authority or power. These are extra legal powers exercised perhaps arbitrarily and without any kind of checks and balances that any system must have. The other layer of the story is also the political tokenism of food certification. Halal is indeed a Sharia concept, applicable only to the Muslims. There cannot be a generalization of this concept for the majority of the Indians who may have different food preferences and beliefs. If at all, there needs to be some kind of certification. It needs to be done by authorized agencies or bodies. Can religious bodies really be trusted with running a parallel network that affects businesses and communities? The domination of any particular community or one particular community over certification can also lead to unfair trade practices and some kind of monopoly. And why doesn't this so-called halal certification process offend the constitutional value of secularism, which forms the basic structure of Indian Constitution? Our focus on Brass Tacks tonight. भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया है हलाल प्रोडक्ट पे। अब उसको इससे मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो खराब होगी। ये योगी सरकार का काम है, कैसे बंटवारा हो, कैसे आपस में लोगों के मतभेद हो, इनका काम है। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। Well, what exactly this entire halal certification row really about? Let's tell you about the so-called certification and what does it entail. The government does not mandate any kind of halal certification. If you go to the FSSAI website, the Food Standard Authority of India, there is no mandate of any kind of halal certification so-called that you need to get. Government does not provide a unifying regulatory law. This is a huge gap as far as the government and authorities are concerned. The halal certification, which is being provided by many private companies and also certain Muslim organizations like Jamiyat-e-Ulema Hind, which engage in the practice of certification. Private bodies mark food for products as permissible. This is largely a Muslim concept of whether something is acceptable, permissible. Halal means permissible or something that you can consume as a practicing Muslim. Halal India and Jamiyat Halal Trust among the certifying bodies, one of the biggest trust organizations and private bodies that indulge into this job. The Yogi government has imposed a ban. And what are the reasons that the government is citing for this particular ban to come into place? Number one, fake halal certificates have been issued by multiple trusts. The fact that you give this kind of power to private bodies without any kind of checks and balances only opens up the Pandora's box or an avenue for blatant misuse. There's also forgery rackets leading to undue financial gains, which are segregated only for certain organizations and individuals. And not everybody has access to it because there are a lot of Hindus, Christians, Sikhs, other communities which might be in the business and might be affected by the so-called certification. These fake certificates violate public trust in the halal trade. The question for the government here is also that yes, you've banned this. Are you going to give any kind of mechanism in its place? Social animosity promoted via illegal halal trade. That's one of the arguments that has come in from the BJP and from the government.
The sale of non-halal companies is affected by this illegal trade. A lot of food items, say your biscuits, medicines, even your namkeen packets, a lot of edible items which are not really, meat products, are labeled as halal. And a lot of these manufacturers can come from different communities, and that is how it affects. Unfair advantage passed on to the anti-social elements. And even if you just bypass the prospect of an anti-social element, this is an unfair trade practice. It's some kind of a privilege which is only accorded to one particular community. Unrestrained propaganda bolstering the halal certification. So the Yogi government has cracked a whip, and how this is going to really play out politically, that's a wait and watch. This has also drawn sharp criticism from the opposition camp. In fact, Kamru Chaudhary has tweeted, and this is part of our Motorola, India's best 5G smartphone brands tweet of the day. Hello, Moto. Now he has said, and I'm quoting right now, that Hindutva thrives on the anti-Muslim propaganda. Halal food certification, if you read what he's written, halal food certification is a new concept meant for export to Islamic countries. Even beef exported from India has to be halal certified. This is something that the government has also clarified and said that, look, as far as export products are concerned, this is not something which is going to affect the exports of the country. And foolishness of the Yogi government to appease Hindus will result in financial loss for India. Now, should financial loss dictate what a government does? Or should we have the right principles of the Indian Constitution, law of the land, guiding us as to what should be the norm when it comes to any kind of certification? Let's get to our big debate. Is the halal controversy or this halal ban legally tenable? The fact that the government has gone ahead, taken this action, is also going to be challenged in a court of law. Hello, Moto. All right, let me cut across to our guests who are joining us on the broadcast. We have Mr. Shalabh Mani Tripathi, who is the spokesperson and MLA of the BJP. We also have Mr. Pradeep Kumar Bisht, who is the spokesperson of the Samajwadi Party. Mr. Danish Qureshi, who is the leader of the AIMIM, is also joining us on the broadcast. Mr. Deshratan Nigam, who is a lawyer and political analyst with us on the show. Good evening to all of you. Namaskar. Thank you so much for joining us on Brass Tacks tonight. Shalabh Mani ji, सबसे पहले आपके पास आऊंगी. I'd like you to open the show for us. The criticism is that this is a project of Hindutva. There are no real concerns that the government is taking care of. और कहीं ना कहीं एक साजिश और प्रोपेगेंडा के तहत योगी सरकार ने इस पूरे निर्णय को लिया है. इसके बहुत खराब परिणाम होंगे, खासकर ट्रेड और जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उस तरह से. देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है. जी, ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक सेकुलर स्टेट है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है. और इस देश में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई शरीयत कानून लागू हो जाए, या आप इस देश को इराक बनाना चाहते हैं, सीरिया बनाना चाहते हैं, तो इस बात की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है. आपको ये पता है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फूड प्रोडक्ट को लेकर, तमाम सारे जो और प्रोडक्ट्स होते हैं पहनने वाले, यूज करने वाले, उनको लेकर भारत सरकार में कानूनन कुछ संस्थाएं हैं जो ये तय करती है कि कौन सी चीज क्वालिटी की है, कौन सी चीज क्वालिटी की नहीं है. आपने अभी FSSAI का जिक्र किया, तो वो बताती है कि भाई क्वालिटी की चीज है, आपको खाना है, और जिसको नई क्वालिटीज में होती है उसको मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपको सर्टिफाई नहीं करेंगे. उसी प्रकार आपको पता था कौन सा ऑर्गेनिक फूड है और कौन सा ऑर्गेनिक फूड नहीं है. तो क्वालिटी को लेकर बहुत सारी संस्थाएं बनी है. आपको कौन सी चीज कैसे उपयोग करनी है उसको लेकर भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं बनी है जो कानूनन जो सही है, जो काम करती हैं. लेकिन ये कौन सी संस्थाएं हैं जो रातों रात खड़ी हो गई और ये तय करने लगी कौन सा प्रोडक्ट हलाल है और कौन सा प्रोडक्ट हलाल नहीं है. और बात मीट प्रोडक्ट की नहीं है. मीट प्रोडक्ट तो ठीक है, उनका राइट है, वो उनके धर्म के मुताबिक वो कोई खा सकता है, उनका अपना जो उनका धर्म कह सकता है. लेकिन आप कल को ये तय करने कि लिपस्टिक हलाल है कि नहीं है, फर्नीचर हलाल है कि नहीं. मैं इसी डिबेट में पिछले 2-3 दिन से डिबेट हो रही है, मैं सुन के दंग हूं कि आप क्या क्या सीरिया बनाना चाहते हैं इस देश को, या आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं. आप कहते हैं कि आप जो फर्नीचर यूज कर रहे हैं उसको भी हम चेक करेंगे हलाल है कि नहीं है, नमकीन हलाल है कि नहीं हलाल है. आज एक सज्जन मुझे बता रहे थे कि वो सब्जियों का बिजनेस करते हैं, उनसे कुछ लोगों ने कहा भाई कि आपकी प्याज को लेकर वो सर्टिफिकेशन चाहिए कि हलाल है कि नहीं है. तो ठीक है, दुनिया के बाकी देशों में क्या होता है हमें उससे मतलब नहीं है कि दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट क्वालिटी में क्या हो रहा है, वो दुनिया के मुल्क की क्या कानून है. पर यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कानून है वो किसी इस प्रकार के इस्लामिक, गैर इस्लामिक, हिंदू प्रोडक्ट, मुस्लिम
के तौर पे हमें नहीं बांटता, न हिंदू प्रोडक्ट, न मुस्लिम प्रोडक्ट, न सिख प्रोडक्ट, न ईसाई प्रोडक्ट। हम 140 करोड़ देश की भावनाओं को लेकर चलने वाले लोग हैं, और किसी की भावना अगर इससे आहत होती है और कोई कानून अगर टूटता है तो निश्चित तौर पे इस पे जांच होगी और जो कार्रवाई आगे बनती है वो कार्रवाई होगी। दानिश जी, यू हर्ड मिस्टर शलभमणि त्रिपाठी, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं देश में जो है वो संविधान का राज है, एंड इट इज ट्रू दैट द मुस्लिम कम्युनिटी हैज द राइट टू कंज्यूम व्हाट देयर रिलीजन अलाउज देम टू, व्हाट देयर रिलीजन मैंडेट्स देम टू. Nobody can stop them from doing that, but that's not the issue here. A lot of products like your makeup products, your quote unquote vegetarian products like your biscuits and your namkeens, a lot of edible items which may have got nothing to do directly with halal or any kind of certification are being certified by these bodies, and this is an unfair trade practice which also has a political quotient to it, which is developing in some form of extremism. That's what is being hinted at. Danish ji, your comments. अनुषा जी, आई वांट टू रिप्लाई टू शलभमणि त्रिपाठी जी, और मैं उनको उन्हीं की भाषा में जरा जवाब दे दूं। सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे दें कि अगर योगी जी ने जो कही सही किया है, और अगर योगी जी के मुताबिक देश को ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, पता नहीं क्या क्या मुल्क के नाम दिए, तो शलभ जी मुझे ये बता दीजिए कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या मोदी जी ने स्पेशल शरीयतन इजाजत दे रखी है जो अंतरराष्ट्रीय फलक पे उसकी परमिशन ग्रांट करता है? अगर नहीं करते तो सबसे पहले तो वो हटा दीजिए, या तो फिर आप मोदी जी से कहिए कि भाई इसको बंद कर दे। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं ना, देखिए सबसे पहली बात कि आप यहाँ क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना नहीं चाहते, देश में क्या बनाना है, ये देश के जो भी जिम्मेदार थे, वो मुझे लगता है कि आज के जो वर्तमान के नेता हैं अपने आप को जो बने बैठे हैं, उनसे कहीं ज्यादा समझदारी के साथ में रह रहे थे। फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक मिनट के लिए अगर आप ये सोच लीजिए कि जब देश में संविधान लागू किया जा रहा था, शलभमणि जी आप खास सुन लीजिएगा, मोदी योगी जी तक मेरी बात भी पहुंचा दीजिएगा, जब देश में संविधान लागू किया जा रहा था तब तमाम लोगों का इंक्लूसिवनेस का जो सेंस था वो लिया जा रहा था। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर योगी जी उस संविधान सभा में होते तो क्या होता? दानिश जी, देखिए आपको अपने तर्क रखने का पूरा समय दिया गया और एक एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन संविधान, इंक्लूसिवनेस बहुत अच्छे विषय हैं, इन पर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। इस समय एक मुद्दे पर बात हो रही है, अगर आपके तर्क में, आपकी समझ में यूपी सरकार का जो ये निर्णय है ये गलत है, तो आपको मुझे उसका तर्क देना पड़ेगा कि क्यों गलत है, तो मैं उस तर्क की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जी बोलिए। मैम देखिए, सुनिए, मैं आपको बताऊं, दिक्कत ये है कि देश में जो हम संवैधानिक जो हमें हुकूक मिले हैं, ये हमारे पर्सनल हुकूक हैं। मैं आपको बताऊं कि ज़िबा करने की बात की जाए तो शलभ जी से पूछिए, ज़िबा करने के सबके अलग अलग तरीके हैं। अगर सिख कम्युनिटी की बात की जाए तो उनका ज़िबा करने का तरीका अलग है, मुसलमानों की बात की जाए तो उनका ज़िबा करने का तरीका अलग है। तो क्या आप मुझे ये बताइए, अगर सिख कम्युनिटी के लोग अगर यूपी में बसे हैं तो क्या योगी जी उस पर भी पाबंदी लगा देंगे? तो ऐसा नहीं होगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब हम बात करते हैं हलाल के डेफिनेशन को, सबसे पहले तो एक बात समझ लिए, हलाल का सीधा बेसिक अगर डिस्कशन कहीं निकल के आता है तो वो इस बात से कि इंसानियत के जो हुकूक हैं, जो पैरामीटर्स में इस्लाम जिसकी इजाजत देता है और इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत हमारे पास इसके हक हैं, ये पाबंदी योगी जी नहीं लगा सकते। और सुनिए, योगी जी तो ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन मैं आपसे कानून की बात पे आ रही हूँ। शलभ जी आपके पास भी वापस आ रही हूँ, कमिंग बैक टू यू, बट वन क्वेश्चन फ्रॉम दानिश जी बिफोर आई ब्रिंग इन प्रदीप कुमार जी एंड मिस्टर देशरत्न निगम इनटू द डिस्कशन। बट दानिश जी, संविधान में या किसी भी स्टैट्यूट में कहाँ डिफाइंड है कि हलाल क्या होता है? दूसरी चीज आपने इंक्लूसिवनेस की बात की, बहुत अच्छी बात है, बट इट्स अ टू वे स्ट्रीट। इंक्लूसिवनेस का मतलब सिर्फ एक कम्युनिटी, सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। और हलाल का ये कॉन्सेप्ट नमकीन, बिस्किट, मेडिसिन और लिपस्टिक पे कैसे अप्लाई होता है? आई अंडरस्टैंड इट फॉर मीट प्रोडक्ट्स बिकॉज वो आपका धर्म है, वो आपको मैंडेट करता है, बट देयर आर अदर अलाइड प्रोडक्ट्स जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो सारे बाय प्रोडक्ट्स जो हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो अगर हम इसमें इसकी बात करें, मेट्रन टैलो की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारी चीजों के अंदर में उसका इस्तेमाल होता है। और मैं तो सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन सारी चीजों का अगर वेजिटेबल की भी बात की जाए, हलाल के मसले में अगर कोई स्कॉलर से पूछेंगे तो आप ज्यादा बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं बेसिक आपको बताता हूँ कि अगर किसी गलत तरीके से किसी सब्जी को भी पैदावार किया जा रहा है और वो भी अगर नुकसानदेह है तो वो भी हलाल के और हराम के दायरे में आ जाती है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तर्क से देश चल सकता है। खैर, मैं तो ये मानती हूँ कि सब्जी वैसे
आनी चाहिए जिसे आपको खाकर और मुझे खाकर न्यूट्रिशन मिल जाए। शलभ जी, आपको 30 सेकंड्स दूंगी, फिर उसके बाद प्रदीप जी के पास जाऊंगी। शलभ मणि त्रिपाठी। देखिए, मैं तो हैरान हूँ, दानिश भाई बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मैंने कहा ना कि हाँ, खाने पीने का अधिकार है, आप किस प्रकार से हलाल करके खाते हैं, ये आपका अपना अधिकार, उस पर कोई कुछ कहने भी नहीं जा रहा। लेकिन अब दानिश भाई जैसा व्यक्ति बता रहा है कि सब्जी उग रही है, वो किस प्रकार से उग रही है, हलाल है कि नहीं हलाल है, मुझे बड़ी हैरानी होती है। अरे कोई चीज अगर खराब हो रही है तो आपके पास खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आपके पास 20 सेकंड अनुषा जी, 20 सेकंड कि भाई देखो इसमें खराब क्वालिटी की है। आप जैसे बताएंगे कि सब्जी खराब ढंग से उगाई जा रही है, हमारे पास प्रामाणिक संस्थाएं हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता है, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वो कार्रवाई करती हैं। लेकिन आप इस्लामिक तरीके से कैसे तय कर सकते हैं? कल को इस प्रकार अगर हिंदुओं ने तय कर दिया कि हम तय करेंगे कि कौन सी चीज हमारी मुनासिब है, कौन सी शुद्ध है, अशुद्ध है, आपको कैसा लगेगा? तो इस देश को बांटिए मत। हालांकि आपकी पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया मुसलमान है, आप केवल एक धर्म की बात करते हैं, आप सभी की बात नहीं करते, तो आपसे हम बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते। किसी धर्म के विधान से तो ये देश नहीं चल सकता। सर, I'll come back to you, but there are other gentlemen also with us on the broadcast. Sir, I'll come back to you. Allow others also to make the comment. I'll come back to you, sir. I'll give you the opportunity. Mr. Pradeep Kumar Bhatti, I'll come to you. The Samajwadi Party has also taken a position and a stand on this entire matter. But I believe एक सबसे बड़ी समस्या इसमें ये है, the biggest problem is that right now we don't have a set of laws or rules at the national level or at the state level. If at all there is this kind of certification which is required at all. There is a lacuna in law that exists and that is being exploited by a lot of private players in this entire matter. The fact that law of the land does not allow this kind of certification, would you still back the position that has been taken by AIMIM or various other people? Pradeep ji. Thank you, Anisha, and good evening to all. First thing, I want to say that I have the order of UP government, which states that the production and the storage of halal certified products is legal in India. You can export it, you can use it for export, but internally consumption is prohibited. That's what I have understood from this order. Okay. The second and most important thing is that we should not get diverted from the issue. The issue is that who has stopped the UP government from last 6 and 7 years to make a law or a regulation to it, and who has stopped Modi government from last 9 years to have this order, where there is a lot of exports happening around the world. You have an organization which gives certification. You say it is illegal in India, and when they export the same certificate that is legal in India, I do not understand the same organization. How come that same organization becomes legal, and the same organization when certified for export is it's legal, and for India it's illegal. That's very strange. Okay. Secondly, it's not new in the UP BJP or BJP government. Such a lack of insight and unthoughtful approach is very common in Uttar Pradesh. So many big organizations across the India and MNCs, international MNCs, are also having these certification, including the largest milk producer of India. So these all organizations have taken that certification. Why the BJP government was sleeping if there was some issues related to the certification, registration, or rules and regulations? Who has stopped them from making they talk about, they do all this tall talks about the policy framework and ease of doing business. No, where that ease of doing business when we are exporting it to the entire world with the same certification? Sir, thirdly, people. I think two thirdly, points. The most important, Anusha, just 30 seconds. Sure. And most important point is BJP wants to, because BJP want to blow out this issue, and the reason of blowing this issue is that they want to run away from the core issues that is affecting the common people. That is the price rise, the very high inflation, very high unemployment, which is 25% in the rural area in Uttar Pradesh. What about the corruption that is happening
See in Uttar Pradesh, I'll- it's Shalabh Mani sir, Tripathi I'll take all tell these- us all about these the 3 points. I'll Sachivalaya take- Bharti Ghotala. I'll take all What a these 3 strange points to Ghotala the we have BJP. heard, you haven't heard in the entire country. I think one of the most important I'm sorry? points. I'll take all these 3 points to the BJP and Shalabh Mani ji उनका जवाब भी जरूर देंगे, I'm sure. But I think इस पूरी debate में, in this entire debate, one of the biggest things that has emerged is, and which I believe should be talked about, is that if we disagree with this kind of private/religious bodies giving these kind of certifications, we need to have rules in place coming in from the elected governments, secular governments of the country, defining what should be the course ahead. Mr. Desh Ratan Nigam, is there a lacuna in law? Well, Anusha, let me tell you, if this is not stopped, tomorrow I am sure there will be a Sanatan certificate for all the products. And that day will not be far, because we have this certification is unconstitutional. Constitution does not mandate it. First, even under the minority rights, it is not there, because we do not follow Sharia law. We follow our own constitution. And halal is under the Sharia law. Let us be very clear. Absolutely. Now, and secondly, there is no lacuna in the law, because we have certain certification based on products. Now, about the food, it is FSSAI Act. Yes. Under the agricultural product, it is the egg mark. And non-agricultural, non-food products, we have ISI mark by the BIS. So, for specialized products, we have centralized authorities to give certification. And to give such kind of a private certification is discriminatory. It removes non-Muslim companies from producing products which are consumable by Muslims, one. Secondly, halal process can only be done by Muslims. Therefore, non-Muslims will be removed from the employment chain, which is very discriminatory. I think let me, sir, this is an important point you've made. Danishri, before I go back to Mr. Shalabh Mani Tripathi, a very quick answer from you. Can a person from any other community, barring a Muslim, produce or generate or manufacture a product which is halal to the community? Or the requirement is, or the requirement is that the person has to be a Muslim? No, we are having Alana, Al Kabir. These are the biggest industries holder. Those who are not Muslim and supplying the meat in the international market. We can get you can get from Mr. Shalabh Mani Tripathi ji. But the problem is that they want to create a rakas in the name of halal. Okay, that's an assertion you're making. That's an assertion you're making. Mr. Shalabh Mani Tripathi, sir, Shalabh ji, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि ठीक है, सरकार ने एक फैसला लिया कि इस तरह की प्राइवेट बॉडीज इस तरह का क्रेडिटेशन नहीं कर सकती, और अगर भारत के संविधान, भारत के कानून को देखा जाए तो कानून में तो इसका कहीं भी विवरण नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो इसका कोई स्टैट्यूटरी या लीगल बेसिस नहीं है. लेकिन अगर ये ट्रेड को इफेक्ट करता है, अगर मार्केट में इसकी डिमांड है, तो क्या पहले राज्य सरकार को इसके नियम बनाने चाहिए थे? और दानिश जी तो कह रहे हैं कि जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन मुस्लिम्स भी बना सकते हैं, तो फिर ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कैसे हो गया? नहीं, मुझे एक बात बताइए अनुषा, की कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो फैक्ट्री ये तय करती होगी कि कौन सा प्रोडक्ट हलाल है, कौन सा प्रोडक्ट हलाल नहीं है? उनको जानने, उनके नियम कानून के तरीके कौन से होंगे? जो ये कहते हैं कि हमारे अपने पैमाने, उसको क्या कोई नॉन मुस्लिम उसको देख भी सकता है? उसको क्या पता कि शरिया क्या है? उसको क्या पता कि इनके इस्लामिक कानून क्या है? उसको क्या पता कि किसी चीज को हलाल बताना या गैर हलाल बताना वो कोई नॉन मुस्लिम इसको कैसे कर सकता है? तो ये तो सीधे तौर पे इसके पीछे क्या खेल है, इसको समझने का प्रयास है. ये एक तरह के बिल्कुल कारोबारियों को पीछे धकेलने का प्रयास है. अब आप देखिए, मटन के कारोबार में हमारे हिंदू समाज का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मटन के कारोबार से जुड़ा हुआ है. वो कई समाज के लोग उनको डिस्करेज करने के लिए, नहीं, उनको डिस्करेज कर दो, हमारे लोग हो जाए. उसी प्रकार आप देखिए, फर्नीचर से भी हिंदू समाज के बहुत बड़ा तबका है जो फर्नीचर के कारोबार में वो जुड़ा होता है. वो सामाजिक पृष्ठभूमि उनकी ऐसी है, उसको डिस्करेज कर दो कि वो बिल्कुल बाहर हो जाए मार्केट से. लेकिन शलभ जी, आप मुझे ये समझाइए कि वो डिस्करेज कैसे होंगे? मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछ रही हूँ कि अगर नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स भी हलाल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और किसी बॉडी से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन सही है, मैं मानती हूँ कि कोई कानूनन एक बॉडी होनी चाहिए, पर उससे एक नॉन मुस्लिम का राइट कैसे इफेक्ट हो रहा है अगर वो ट्रेड और प्रैक्टिस कर सकता है अपना? तो शलभ जी, देखिए, जो संस्था सर्टिफाई कर रही है वो संस्था गैर इस्लामिक तो नहीं है, केवल इस्लामिक है, क्योंकि उनको ही तरीके पता है. मैं अगर आपसे पूछूं अनुषा से कि आप अनुषा मुझे बताइए कि हलाल करने का प्रोसेस क्या है, आप बता पाएंगी? या मैं किसी और से पूछूं, बता, कोई इस्लामिक कानून को मानने वाला व्यक्ति ही बता सकता है. तो जो सर्टिफाई करने वाली संस्था है, जो कि
तौर पे गैर कानूनी है, वो 2-2 लाख से लेके 5-5 लाख रुपए तक ले रही है। वहां पर जो मोनोपोली है किस प्रकार की है कि हमें कौन से प्रोडक्ट को अपने लोगों के बीच में पहुंचाना है, अपनी कम्युनिटी के बीच में पहुंचाना है। और इस प्रकार से अगर आप धर्म के आधार पे किसी भी प्रोडक्ट का बंटवारा करेंगे तो एक तरह से जो हमारे देश की जो अपनी संप्रभुता है, हमारे देश की जो कम्युनल हार्मोनी है, उसको आप डैमेज करते हैं, उसको आप नुकसान करते हैं। क्योंकि इस देश में कभी किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि भैया मुसलमान प्रोडक्ट बना रहा है तो हम उसका नहीं यूज करेंगे। आप देखिए लखनऊ के भीतर टुंडे कबाब है। अनुष्का, ऐसा नहीं है। लखनऊ के भीतर लखनऊ के भीतर टुंडे कबाब है। बहुत सारे हिंदू परिवार के लोग जाते हैं। अब शलभ जी, मतलब कबाब तो 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अगर आप बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे मुस्लिम आर्टिस्ट हैं जो कृष्ण जी के कपड़े बनाते हैं, कृष्ण जी का मुकुट बनाते हैं। आप बनारस और चंदेरी में चले जाइए, वहां पर जो मंदिर हैं, वहां पर मंदिरों में जो कपड़े चलते हैं वो सारे मुस्लिम आर्टिस्ट हैं जो इस देश में बनाते हैं और बहुत खूबसूरत बनाते हैं, पुश्तों से बनाते आ रहे हैं। यही इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। दानिश जी, are you promoting some kind of fundamentalism in this country by taking it beyond a point? एक हद तक मुझे बात समझ में आती है कि जहां आप मीट खा रहे हैं, कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, रिलीजन में एक डायरेक्ट कमांडमेंट है, आपको फॉलो करना है और आपको करना भी चाहिए, संविधान आपको इजाजत देता है। बट टू टेक इट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इज इंडीड फंडामेंटलिज्म इन इट्स ओन वे। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी जी, मुझे इस बात का ये जवाब बता दीजिए कि अगर आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के बीच बस्ती में ये कहते हैं कि मुसलमानों का बायकॉट करिए, तो क्या उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? क्या ये सर्टिफिकेशन नहीं हुआ? इस पे कोई जवाब था आपके पास? आज तक उसमें एफआईआर नहीं। इस पे कुछ बोलेंगे आप? उस पे नहीं बोलेंगे। दिक्कत क्या है? आप सिर्फ लिमिटेड बात करेंगे। अभी जब आपने जब मैंने आपको बताया कि भाई गैर मुसलमान भी किस तरीके से हलाल बिजनेस के अंदर में एफिलेटेड है, तब आपको ये बात कबूलनी पड़ी कि कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर में इन्वॉल्व है। इसलिए हलाल के सर्टिफिकेशन को लेकर आपके दोहरे मापदंड, अगर आप ये कहें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाइए, आप बेचिए, सर्टिफाइड भी करिए, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वैलिड भी करेंगे, स्टेट में आप बैन करेंगे, तो ये दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? इसलिए भी है, देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूं, लेकिन अगर बेसिक पॉलिटिकल साइंस की आपको अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं हैं, वो मुस्लिम नेशंस हैं जो शरिया कानून से चलते हैं। और अगर हमें अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं तो हमें कहीं ना कहीं राइडर और वेवर देना पड़ेगा, क्योंकि उन कंट्रीज में उस तरह के नॉर्म्स हैं। हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है। प्रदीप जी को भी मैं डिस्कशन में लाना चाहूंगी, आपके पास वापस आऊंगी शलभ जी। Pradeep ji, isn't it taking the religious ideas and whatever beliefs you may have as an individual, as a community, beyond a certain point, and too much of anything becomes fundamentalism? While we, very beautifully talk about secularism in this country and the Ganga Jamuni Tehzeeb, but that being said, it is a two-way street. That kind of flexibility, that kind of acceptance needs to come from both the sides. Pradeep ji. Yeah, I think you are right, but Mr. Tripathi has to understand that this particular country has all religion, and every belief has to be respected, which they don't believe into. This is a simple law and order issue. If some organizations are giving this certification, if they are doing something wrong in that is the responsibility of the BJP government. Why they are hiding and running away from that responsibility and trying to make this issue such a big issue? They are just wish to make this mountain out of this molehill. So Pradeep Kumar ji, if tomorrow all the Hindu mutts unite, Pradeep ji, one question. If tomorrow all the Hindu mutts unite and say that whatever is offered in temples of this country needs to be Sanatan certified, and it needs to be done in a certain way by particular set of individuals with particular practices, you have to follow a certain set of rules, and only then these items could be used in the religious practices. Forget your everyday life. Wouldn't that affect millions of lives, millions of jobs from the minority community? And would that be tenable then, sir? See, whatever is there as per the law, whatever is possible as per the law, and whosoever is breaking that law, we have to take that action, whether it's a Hindu community or that Muslim community. So that we have to understand, this is not an issue about which BJP is trying to make it. This issue is why BJP, that what I was trying to say, why BJP wants to
make this a big issue is that they do not want to talk about the corruptions that is happening in Uttar Pradesh. चलिए the ये Sachiwala सवाल शलभ Ghotala, जी से that's पूछ what I लेते हैं। ये was सवाल referring शलभ to. जी से पूछ They do not want to talk शलभ about. जी, is that your distraction technique? Let's talk about the important issues. Are you is the government? Halal issue is not that big issue. सर मैं पूछ रही हूँ उनसे, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने पहले भी बोला था। Issue which has to be taken care by the law. So why we are making it such a big issue? Sir, it is becoming a big issue because of the reactions which are coming in. Because it has reached the court, because there are various top Muslim organizations which have taken objection to the decision of the government. That is why it has become so important. But I'll ask that question, Sharad ji, क्या सरकार अहम मुद्दों से भाग रही है और इसी वजह से ये हलाल जैसे मुद्दे? Yes, no, one second. Let Mr. Shalabh Tripathi come into the discussion. Then I'll come back to you, Pradeep ji. देखिए मुद्दे क्या हैं अहम मुद्दे क्या हैं, इनको हम तय करेंगे क्या या प्रदीप जी तय करेंगे? ये मुद्दे क्या है जनता तय करती है। और मैं तो कह रहा हूँ ना कि अभी मुश्किल से 1.5 साल पहले ये समाजवादी पार्टी के लोग गए थे, कांग्रेस के लोग भी गए थे, AMI के लोग भी गए थे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करके हम भी अपने मुद्दे रख कर आए और जनता ने मुद्दों को पहचाना। कौन से मुद्दे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के दंगे मुद्दे नहीं थे क्या? मुजफ्फरनगर के दंगे किसकी सरकार में हुए? आतंकवादियों की रिहाई क्या मुद्दा नहीं थी क्या? और आप कहते हैं ये मुद्दे नहीं, क्यों मुद्दे नहीं है भैया? आज हलाल का सर्टिफिकेट बट रहा है और प्रदीप जी अपने घर पे जाके पूछिएगा अपने परिवार के लोगों से कि क्या हलाल, आप तो यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप तो बोलेंगे, लेकिन प्रदीप जी के परिवार के लोग क्या इस बात से सहमत हैं कि किसी प्रोडक्ट पे हलाल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए? क्या इस देश में इस प्रकार की प्रवृत्ति चलनी चाहिए? तो मुद्दे आप नहीं तय करेंगे, मुद्दे हम भी नहीं तय करेंगे, मुद्दे इस देश की जनता तय करती है, उसको तय करने दीजिए। और आज देश की जनता जिन मुद्दों से जुड़ी हुई है उसी का परिणाम है कि 2014 से आप लोग बार एक ही रट लगाते हैं। 10 साल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में 7 साल होने जा रहे हैं योगी जी को। मुद्दे क्या है उनको आप पहचान नहीं पाते, आप इसीलिए तुष्टीकरण करते हैं और आज खुल के हलाल के सर्टिफिकेट के साथ खड़े हैं और जनता इस पर भी जवाब देगी। प्रदीप जी, a quick response from you, then I'll bring in Mr. Desh Ratan Nigam and Danish ji into the discussion. मैं शलभ त्रिपाठी जी को ये पूछना चाहता हूं कि जो आप ये बता रहे हैं कि मुद्दे कौन डिसाइड करेगा, आपको किसने स्टॉप किया था पिछले 6 साल से और 9 साल से मोदी गवर्नमेंट को किसने स्टॉप किया था ये सर्टिफिकेशन रोकने के लिए? आप पहले उसका आंसर दे दीजिए। और आप अपने इनकम्पिटेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, आप यू आर ट्राइंग टू put that incompetency of the government on the other party. You are in the government from last 9 years in the center and more than 6 years in the Uttar Pradesh. Who has stopped you from doing that? So you are trying to put this particular issue, you want to burn that issue and try to gain some votes from that, which is not going to happen in this time. And everybody, all the people of this country understand that what BJP is trying to do in when the elections are near, they are just trying to do what they are doing best from last so many years. They will not talk about the issues related to the employment of the Listen to the other side now. Pradeep ji, you've made your point. Listen to the other side. जनता ने हमें जनादेश दिया है, हम कौन सा काम कब करेंगे? 5 साल के लिए जनादेश दिया, हमारी सरकार को 1.5 साल पूरे हुए, हम कौन सा काम कब करेंगे हमें तय करने दीजिए। आप जब थे तब तो आपने बढ़ावा दिया, आपने आतंकवाद, लॉ एंड ऑर्डर आप बाद में देखिए। एक व्यक्ति एक ही समय पर, मेरा निवेदन है। हमने 370 हटाया, आपने कहा आज क्यों हटाया? आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, नोट कर लीजिएगा 22 जनवरी की है। 3 तलाक हटाया, बोलते आज क्यों हटाया? अरे हम तो हटा रहे हैं, आप तो बढ़ाते चले गए। आज अगर इसको लेके कार्रवाई हो, लॉ एंड ऑर्डर इट हैज टू बी dealt today, not 6 years, 7 years. It's not a policy. One at a time, sir. One at a time. Let him finish his argument. One at a time, sir. One at a time. Just Shalabh Tripathi, please. You are saying आज Shalabh Tripathi right now. Shalabh Tripathi. नहीं इरिटेट मत होइए, इससे लगता है कि आप भटक गए हैं इसलिए परेशान होते हैं। हम लोग वर्चुअली जुड़े हैं, दूसरे को साथ नहीं बैठे हैं, तो आप कहते एक तो आपने कुछ किया नहीं, आपने बर्बाद किया, हम ठीक कर रहे हैं, आप पूछते हैं आज क्यों करें? अरे भाई जनता ने 5 साल दिए हमें सेवा करने के लिए, हम 499 दिन भी करेंगे, 99 दिन करेंगे, तो भी आप ये नहीं पूछ सकते। ये बात तो मैं शरद जी मानती हूँ कि ये कोई मूल तर्क नहीं है कि आपने अभी क्यों किया, बट ऑन द क्वेश्चन ऑफ विल द गवर्नमेंट ब्रिंग इन सम लॉज एंड रूल्स, आई विल कम बैक टू यू, उस विषय में भी मैं आपसे बात करूंगी। दानिश कुरैशी जी, वही सवाल मैं आपके साथ दोहराती हूँ, आई विल रीइटरेट द सेम क्वेश्चन टू यू, दैट in this beautiful country, in the beautiful secular fabric of this country, there are very talented Muslim artists who work for various kind of trades and practices which are intrinsically linked to the Sanatan Dharma, and that has what been celebrated in this country. If tomorrow there is a Sanatan certified product that starts being issued by certain maths or religious bodies in this country, wouldn't that affect millions of jobs? And wouldn't that really qualify as some kind of religious fundamentalism in this country? तब आप कहेंगे कि देखिए हिंदुत्व कितना बढ़ता जा रहा है इस देश में, लेकिन आज जब हलाल सर्टिफिकेशन है तो वो फंडामेंटलिज्म नहीं है।
आई वॉन्ट टू रिप्लाई यू अनुष्का जी। सबसे पहले तो शलभ मणि जी को मैं जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उसमें नाम में ही मुसलमान है, तो बड़ा फक्र है मुझे मुस्लिमीन नाम होने में। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि देश की एक मस्जिद को तोड़ने की राजनीति करने वाली पार्टी वो बात कर रही है AIMIM के स्टैंड पे। इसका अफसोस है। दूसरे नंबर की बात, शलभ जी जो सवाल आया है इसका जवाब मैं आपको दूं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग भी किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे मुझे लगता है कि वो धार्मिक व्यवसाय हो या और कोई भी व्यवसाय है, जहां जहां जो कुछ भी है अपने अपने स्तर पे वो काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन की अगर बात है तो अगर आप भी हलाल के सर्टिफिकेशन की डिटेल मांगने के लिए किसी भी आलिम उलमा के पास जाएंगे तो वो आपको भी रिप्लाई देंगे कि भाई इस्लाम क्या दर्श देता है इसका। आपको उसको एक्सेप्ट करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। मैं आपको बता दूं, कम से कम हजारों कार्यकर्ता आपके पास भारतीय जनता पार्टी के होंगे। क्या किसी ने आपके मुखालिफ हलाल का सर्टिफिकेट दिया कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मस्जिद शहीद की थी, उस पार्टी में मत जाओ? नहीं है ये। तो सवाल ये है कि देश में आजादी है और आपके पास, आप आजाद हैं अपना काम करने के लिए, अपना तर्क, बशर्ते कि किसी और को परेशानी हो रही है। तो अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वो जाए, बजाय इसके स्वरूप में। दूसरे नंबर की और आखिरी बात मैं बता दूं शलभ मणि जी के उत्तर प्रदेश का जो लीगल टीम जो है ना, आप याद रखिएगा, ये जाकर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अगर वो हाई कोर्ट जाएंगे तब भी और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब भी हलाल के मैटर में देख लीजिएगा, हम एक बार फिर कहीं ना कहीं चुनाव में मिलते रहेंगे। इसमें आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया दानिश जी। कल अगर सनातनी सर्टिफिकेट होगा तो वो हिंदुत्व होगा या नहीं होगा? देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी मैं वो है, ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है। कहां है? मैंने तो नहीं देखा। मैं बताऊं। आपको देखिए, आप एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन वो है होटल है कहीं पर, हाँ। तो वहां कोई आदमी जाएगा तो बट ऑब्वियस है उसको पता चलेगा कि भाई हाँ ये नॉन वेजिटेरियन जगह है, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं काम करना चाहिए। तो ऑलरेडी ये मामले हैं। और सुनिए, ये जो प्रॉब्लम है, नहीं क्यों क्या कर रहे हैं, मतलब आप किसी नॉन वेजिटेरियन अभी तो पूरी डिबेट ही यही हो रही है कि खाने पीने की बात ही नहीं है। आप लिपस्टिक, बिस्किट्स, आप मेडिसिन, आप दूसरे प्रोडक्ट्स पर चले गए। यू हैव एक्सटेंडेड इट बियॉन्ड अ पॉइंट। दैट्स द एंटायर डिबेट। ओके, ना कम टू द थिंग। मैं आपको बता दूं, अनुषा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, CNN के तमाम वो फॉलोअर्स जो उनको भी बताइएगा, गुजरात के अंदर में अभी नवरात्रि के अंदर में लिटरली ऑर्गेनाइजर जो थे उसके अंदर में उनके रिलीजन के बेस बनाकर उनके जो काम था वो बैन किया गया। आप कहें तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसकी। परमिशन नहीं दी बड़ौदा में अंदर। जी बिल्कुल, बड़ौदा में हुआ ही है। पूछिए शलभ मणि जी से। नहीं, मैंने तो आपसे कुछ और सवाल पूछा, आप मुझे एक दूर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, लेकिन ये बात तो एक फैक्चुअल प्रूफ है ना कि इस देश में बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े चढ़ावे, वस्त्र, आभूषण, ज्वेलरी, क्लोथ्स, व्हाटएवर इज ऑफर्ड इज मेड बाय द मुस्लिम आर्टिस्ट ऑफ दिस कंट्री एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट and they make it very beautifully for generation. There is no Sanatan certification there. Should we start doing that? Okay, आप अजमेर गई हैं दरगाह पर अनुषा जी? चले जाइएगा आप बाहर। नहीं, कोई नहीं अच्छा नहीं गई तो बाकी के जो लोग भी गए हो उनसे पूछिएगा। अगर आप के बाहर देखेंगी ना, तो जितने भी लोग हैं वहां सेवा देने वाले, वो मैक्सिमम उसमें 80% मुसलमान हैं ही नहीं। पता कर लीजिएगा आप। लेकिन कभी किसी ने, मैं तो 10 बार चादर चढ़ाने गया हूं, मैंने कभी ये नहीं पूछा कि आप क्यों मुसलमान नहीं है इसलिए मैं आपके यहाँ से क्यों खरीदूंगा। वहां से चादर तो हमने भी खरीदी है, टोपी तो हमने भी खरीदी है, हमने भी लिया है। अगर शलभ मणि जी को दिक्कत है तो शलभ मणि को राजनीति करनी है तो करने दीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन की बात हो रही थी और मैंने आपसे पूछा कि क्या सनातनी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मिस्टर देश रत्न निगम, डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड कम विद अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रूल्स? दे हैव टेकन वन स्टेप, they want to justify it legally, but when this goes to the high court, there was an important point that was made by Danish Qureshi, that the court is going to ask them that what is the basis on which you have done this, and will they be able to legally justify this move? Well, Anusha, one thing is very clear. First, let me raise few points. Yeah. None of the non-Muslim companies are producing halal products. Let's make it very clear, but they are compelled to have halal certification. Because they want to have that marketing space more as they, otherwise they would be restricted from selling their products into Muslim community. So therefore this illegal extortion of money which actually goes in defending terrorists, writers, murderers and rapists, that's also a very serious question, first. And secondly, whenever a issue is challenged before a court,
then the court looks for, if a certification is given, what is the legal basis or constitutional basis. That does not exist. That does not there exist. There is no backing Closing of the comments law. from you, Pradeep ji. Do you think that the UP government, after banning, should come up with a set of rules, and will you be satisfied with it? 30 seconds, sir. Firstly, we have to make a law. What Mr. Desh Ratan was saying, that we have to understand that there has to be a law before we compare that particular lawfulness or unlawfulness with the lawfulness. There has to be some set of rules and regulations. I want to ask Mr. त्रिपाठी, आपने 2022 में 40 आइटम्स 40 चीजें बताई थी जो आपको पूरी करनी थी किसान की दुगनी इनकम से लेके, आप उससे कब तक भागते रहेंगे और कब तक टोपी घुमाते रहेंगे? मुझे नहीं लगता 30 सेकंड में वो आपको जवाब दे पाएंगे। मगर शलभ जी, मैं हलाल के इशू पे वापस आती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है, आप इसको कोर्ट में जस्टिफाई कर पाएंगे? और क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई नई नियमावली लेकर आएगी? देखिए, ये सवाल तब भी उठा था जब हमने उत्तर प्रदेश के दंगाइयों से वसूली का अभियान चलाया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दंगा करेगा, पुलिस पे पत्थर फेंकेगा, लोगों पे पत्थर फेंकेगा, उससे वसूली करेंगे। ये जो तमाम पैनल में बैठे हुए भाग के गए थे हाई कोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कुछ नहीं हुआ, जम के वसूली हुई और सारे दंगाई शामिल। जब चौराहों पर दंगाइयों के उपद्रवियों के पोस्टर लगाए थे, तब भी ये रोते हुए चेहरे भागकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि साहब दंगाइयों के पोस्टर लगा रहे हैं, डंके की चोट पे पोस्टर लगे रहे। और जब धर्मांतरण कानून, जब लव जिहाद का कानून बनाया था, तब भी ये तमाम चेहरे रोते भागते हुए गए थे सुप्रीम कोर्ट तक कि भाई लव जिहाद का कानून बना रहे हैं, तो बना दिया। लव जिहाद जो करने वाले थे, कार्रवाई हुई, अब लव जिहाद की घटना रुक गई। अभी हमारे साथ बोल रहे थे कि साहब गुजरात में ऐसा कर दिया। अरे तो गुजरात में नाम बदल के गरबा में क्यों जाते हैं भाई? नाम बदल के, धर्म बदल के, फर्जी आई कार्ड लेके गरबा में जाओगे, पकड़ के कार्रवाई। I'm afraid we have completely run out of time. 2022, 40 but I'd like to end on a constructive note. Thank you, gentlemen, for joining us on the broadcast. That it's great that the UP government has taken a call and decided to put an end to a system which was completely extra legal. It had no rule or statutory basis to it. But if these certificates are to be issued, if there is a need, law needs to come up to address that gap that already exists right now. Will we have rules at the state level? We're slipping into a very short break. Coming up on the other side, civic apathy claims 2 more lives in Bengaluru, where a mother and a daughter are electrocuted by a live wire. Is civic duty not a priority in the IT capital of the country? Stay tuned. Hello, Moto.